اظہر من الشمس ہے کہ مرحومہ مغفورہ حجن صاحبہ کی اشارہ ثواب کے لیے دیکھتے دیکھتے ہی 40 دن ہو گئے. ہم کو تو لگتا ہے کہ شاید 10-15 دن ہوئے ہوں گے, لوگ یہاں جمع ہو گئے تھے, لیکن 40 دن ہو گئے. ہم ان کی 40واں میں اشارہ ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور پھر ان کے لیے دعا کیا کرنی ہے, مجھے تو حدیث رسول یاد ہے کہ میرے آقا نے جو پیاری حدیث ارشاد فرمایا کہ من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا, کہ جس نے کعبہ شریف کو ایمان اور تصدیق کے ساتھ دیکھا, رجا کیوم ولدت امہ, تو وہاں سے ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ اس نے آج اپنی ماں سے جنم لیا ہے. اور دوسری جگہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجا کیوم ولدت امہ, کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس کو فضول نہیں کیا وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. یہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے. ہمیں حدیث پاک پر یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس رسول کے فرمان کے تحت مخدومہ کے سارے گناہ وہی معاف ہو گئے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے دن میں انتقال ہوتا ہے اور پھر جمعہ کے دن انتقال ہوتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ و معمون رکھتا ہے. ہر طرح سے خوشی یہاں موجود ہے, بس ہم صرف جمع ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات میں اور ترقی عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ. میرے بعد پھر آپ کے چہیتے شاعر انٹرنیشنل شاعر حضرت نادر جمالی صاحب پھر آئیں گے. میں چند منٹ کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربها الموت باب کل نفس داخلها, کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر انسان کو داخل ہونا پڑتا ہے. الموت اور موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر انسان کو پانی پینا پڑتا ہے. موت کو اس کی کرے جس کا زمانہ افسوس, موت کو اس کی کرے جس کا زمانہ افسوس. ہم تو دنیا میں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے, ہم سب مرنے کے لیے ہی آئے ہیں, زندہ رہنے کے لیے نہیں. اور موت خود ہماری حفاظت کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, ایسا کرنے سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. نہیں میرے دوست, موت خود ہماری حفاظت کرتی ہے. جب تک ہماری موت نہیں ہے ہمیں موت نہیں آ سکتی. اور آپ کو واقعہ سناؤں. حضرت یعقوب علیہ السلام جو جلیل القدر انبیاء کرام میں ان کا شمار ہے, انہوں نے اسرائیل سے کہا, اسرائیل جانتے ہیں نا جو روح نکالتا ہے, حضرت اسرائیل سے کہا اسرائیل تم تو روح نکالنے کے لیے آتے ہو, لیکن میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ جب تم میری روح نکالنے کے لیے آنا تو تھوڑا آنے سے پہلے اپنا قاصد بھیج دینا, اپنا آدمی بھیج دینا تاکہ میں اس کی تیاری کروں. تو ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آدمی بھیج دوں گا, قاصد بھیجتا رہوں گا. جب چند دن گزرا حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے. کہا کہ اسرائیل کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا. کہا کہ میں تو تم سے کہا تھا کہ جب میری روح نکالو گے تو قاصد بھیج دینا, لیکن تم نے قاصد بھیجا نہیں. اگر قاصد کے میرے پاس روح نکالنے کے لیے آ گئے تو اسرائیل نے کیا جواب دیا تھا میرے دوستو؟ اگر اسرائیل کی جواب آپ کو پسند آئے تو پھر سب کو تیار ہو جائیے گا. یہ تیاری نہیں کریں, کچھ تیاری کریں. تو اسرائیل نے کہا کہ میں تو قاصد بھیجا تھا لیکن آپ کے سمجھ میں نہیں آیا, آپ کے سامنے روزانہ لوگ مر رہے تھے, یہ میرا قاصد ہی تو تھا. آپ بوڑھے ہو گئے, آپ کے جسم کا بال سفید ہو گیا, داڑھی سفید ہو گئی, بال پھٹ گئے, یہ تو میرا قاصد
नासिर ही था, आपका पेट हमेशा खराब होने लगा। आप कहने लगे कि फिर बुढ़ापे की वजह से नहीं, ये मौत का पैगाम ही था, ये मेरा कासिद था, लेकिन अब मेरे कासिद को नहीं समझ पाए। मेरे दोस्त, मुझे एक बात याद आ गई कि हजरत उमर फारूक जब खिलाफत में बैठे, जब इंसाफ कर रहे थे, एक एराज आता है, एक देहाती आगे कहा, या उमर ला तंसा मौत, ए उमर मौत को मत भूलो। हजरत उमर ये कितनी जलील चल रही है, सहाबी हैं और कितने बड़े खलीफा हैं कि आपके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि हजरत उमर जिस रास्ते से गुजर करके शैतान अपना रास्ता बदल के दूसरे तरफ चला जाता था, इतने लोगों के दिलों में डर होती थी। जब ये खलीफा बने तो उनका भी वाकया बहुत लंबा चौड़ा है। जब खलीफा बने तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी ही जिंदगी में खलीफा बना दिया, क्योंकि रसूल हाशमी के बाबू बस इधर हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी ही जिंदगी में इनको खलीफा इसलिए बना दिए थे कि रसूल हाशमी के इंतकाल के बाद खलीफा बनने में लोगों में कुछ इख्तिलाफ हो गया था। तो सोचा कि क्यों ना हम अपनी ही जमाने में उमर फारूक को खलीफा बना दें ताकि मेरे बाद इख्तिलाफ न हो। तो जब खलीफा बनाए तो अबू बकर सिद्दीक से लोगों ने पूछा था, ए अबू बकर सिद्दीक, अगर अल्लाह ने आपसे पूछा कि तुमने खिलाफत किसको दे के आया तो क्या जवाब दीजिएगा? क्योंकि आपने ऐसे सख्त इंसान को हमारे अंदर खलीफा बनाया है कि जब रसूलुल्लाह थे उस वक्त भी वो हम पर सख्ती करते थे, और मौजूद थे तो उस वक्त भी सख्ती करते थे। जब आप चले जाएंगे तो खुद खलीफा बन जाएगा, तो बताइए कितनी सख्ती होगी। आप क्या कायनात को जवाब देंगे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर अल्लाह तबारक तआला ने उससे पूछा कि तू खलीफा किसको बना के आया है, मुसलमान के के हाथ में थमा के आया है, मुसलमान के देख रेख के लिए इसको सुपुर्द किया है, तो मैं अल्लाह के बारगाह में कहूंगा कि अल्लाह, मैं अल्लाह की मखलूक में, ए अल्लाह तेरी मखलूक में जो सबसे अच्छा है मैं उसी को खलीफा बना के आया हूं। सबसे अच्छा मैं उसी को खलीफा बना के आया। चुनांचे जब मालूम हो गया हदीस के अल्फाज में कि लोगों ने बैठक में बैठना छोड़ दिया, जिसे हम लोग बैठते हैं ना बैठक में काटने के लिए या ऐसे बैठते हैं, तो जब खलीफा बने तो लोगों ने बैठक में बैठना छोड़ दिया था, इतना डर दिया लोग अब क्या होगा। चुनांचे जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खबर मिली कि लोग बहुत डरते हैं, हवा बहना वो तरह जोरों से रखनिया हमसे लोग डरते हैं और बाहर बैठना छोड़ दिए हैं। मीटिंग बुलाए मस्जिद नबी में जमा हुए ताकि लोगों तुम लोगों ने जो सुना है ठीक सुना है कि मैं रसूलुल्लाह के जमाने में था तो मेरी जो तलवार हमेशा मियान के अंदर रहा करती थी। हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, मेरी तलवार हमेशा मियान के अंदर रहा करती थी, लेकिन अब वो दोनों नहीं है। अब मेरी तलवार अंदर में ही रहेगी, मेरी तलवार बाहर रहेगी। लेकिन सुन, मैं उन पर सख्ती करूंगा जो मुसलमान पर सख्ती करेंगे। मैं इस गाल में ऐसे पाँव मारूंगा कि इसकी हड्डी बाएं गाल में निकल जाएगी, और अगर कोई मुसलमान के साथ नरमी से पेश आएगा तो मैं उसको अपने गले से लगा लूंगा। और तारीफ बता रही है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किरदार को पढ़िए तो मैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को उठकर बेवाओं और यतीमों का काम करते हुए नजर आते हैं। वो उमर फारूक जब बैठे थे, एक देहाती शख्स आया कहा या उमर ला तंसा मौतक, ए उमर अपनी मौत को मत भूला। अब बताइए इतने जलील दर्द। और फिर बात ये और एक बात बोलूं, एक दिन मदीना मुनव्वरा में एक तमाशा दिखा कर हमारे यहाँ जो सपड़िया आता है तो तमाशा दिखाने वाला तमाशा दिखा रहा था। तो हजरत आयशा तमाम मुसलमानों की माँ अपनी सहेलियों के साथ
तमाशा देखने के लिए खड़ी हो गई थी, तमाशा देख रही थी और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही तमाशा देख रहा था सब बूढ़े बच्चे औरतें मर्द सब खड़े होकर तमाशा देख रहे, जैसे वो कभी पर्दे की आयत नहीं खुली थी, सब तमाशा देख रहे थे। इतने में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हो जाता है, आना होता है। जैसे ही सबकी नजर उमर फारूक पे पड़ती है, सब दौड़ पड़ती है, इधर किधर चली जाती है। तमाम मुसलमानों की माँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ते हुए कमरे में चली जाती है। तो मेरे आका ने पूछा, आयशा क्या बात है, तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम डर क्यों रहे हो, दौड़ क्यों रहे हो? कहा कि उमर आ गए, उमर आ गए। कहा कि उमर, अरे उमर तो मेरा खलीफा वो तो डब्बा है, अंदर तो मैं हूँ, तो तुम मुझसे इतना नहीं डरते हो जितना उमर से डरते हो। अरे अंजन मैं, डब्बा वो, मैं पानी इस्लाम मैं हूँ, वो मेरी कहानी है। मतलब कि अल्लाह ने हज़रत उमर के अंदर वो हैबत पैदा कर दिया था। और क्यों न हो, अल्लाह ने दुआ, अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल उमर बिन आस, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल उमर बिन खत्ताब और उमर बिन हश्शाम। ए अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब से या उमर बिन हश्शाम यानी अबू जहल के दो आदमी के जरिए से इस्लाम को ताकत दे। तो अल्लाह ने उमर के सदक़े में दुआ कबूल कर दिया, उमर की वजह से इस्लाम में ताकत आ गई। इतनी जलील कद्र सहाबी को, अमीरुल मोमिनीन को एक ख्याति करता है, उमर ला तंसा का नाम लेके। आज अगर हमारा कोई नाम लेके हमको टोके या मुखिया को टोके या सरपंच को टोके या एमएलए को टोकेगा ना, ऐसा बदतमीजी है। हमारा नाम लेता है, हमको टोकता है, लेकिन नहीं, हज़रत उमर को कहा या उमर ला तंसा, अपने मौत को मत भूल। हज़रत उमर रोते रहे और उस शख्स से कहा कि मैं तुझे ड्यूटी लगा देता हूँ, नौकरी दे देता हूँ कि हर दिन तुम मुझे सुबह मुझे मौतिया दिला देना, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इंसान के दिल में जब खून फटता है, तब इंसान के दिल में मैल लगता है, तो जो मौत को याद करता है उसका मैल खत्म हो जाता है। लिहाजा आज से तुम मेरी ड्यूटी करना और हर दिन सुबह मुझे मौत याद दिलाते रहना, हर दिन मौत याद दिलाते रहना। कुछ दिन के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जो मैं तुझे ड्यूटी दिया था कि तुम मुझे मौत का याद कराओगे, आज से वो तेरी ड्यूटी खत्म, अब तुम मेरे दरबार में नहीं आना। कहा कि हुजूर कौन सी गलती हो गई, मैं तो ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह अंजाम दिया था, सुबह शाम में आपकी ड्यूटी करता था, आपके पास हाजिर रहता था, कौन सी खामी हो गई? कहा कि ऐसी बात नहीं है, तुमसे खामी नहीं हुई है। बात यह है कि जिस मौत को याद करने के लिए मैं तुझे नौकरी पर रखा था, जब आज मैंने अपनी जहरी को देखा तो जहरी में एक बार मैंने सफेद पा लिया, मैं समझ गया जब तुझे ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, जब मैं अपने सफेद गाड़ी के सफेद बाल को देखूंगा तो मुझे मौत याद आ जाएगा। मुसलमानों जरा गौर करो, मैं अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आपके दाढ़ी के बाल भी सफेद है, आपके जिस्म के बाल भी सफेद हो गए हैं, फिर भी रोजाना आप नाई के पास जाकर उस सफेद दाढ़ी को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। जरा याद करो, अगर वो कल इसी हालत में दुनिया से चले गए और मेरे रसूल जब कब्र में तशरीफ लेके आएंगे और आपके चेहरे को देखेंगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि रसूल नाराज हो जाए, अगर नाराज हो जाए तो आपकी दुनिया भी खत्म, आपकी आखिरत भी खत्म। इसीलिए अपने चेहरे को, अपनी सीरत को, अपने अखलाक को रसूल के किरदार में ढाल दीजिए, ताकि दुनिया में भी आप कामयाब हो सकें, आखिरत में भी कामयाब हो सकें। पढ़िए दरूद सैयदना मौलाना मोहम्मद ये हमारे यहाँ जो मरते हैं लोग, इन्हें हम कहाँ लेके जाते हैं? कब्रिस्तान। हमारे महिला में भी जो मरते हैं कब्रिस्तान लेके जाते हैं, आपके भी एक चनिया में क्या मरता वो भी कब्रिस्तान लेके जाते हैं, मगर नहीं दोस्तों, ये तो हमारी सोच है कि हमें कब्रिस्तान लेके जाते हैं, बल्कि हम मरने वाले को कब्रिस्तान नहीं, मरने वाला हमें लेके कब्रिस्तान जाता है। हम
हमें लेके जाता है कब्रिस्तान और दिखाता है कभी जबान से अपना घर दिखाता है। जैसे आप भी कहीं घर बनाते हैं ना, तो आपका कोई दोस्त आता है तो घर दिखाते हैं कि देखो हम कितना अच्छा घर बनाए हैं, ये किचन रूम है, ये कौन कौन रूम होता है इंग्लिश में उतना याद नहीं है, यानी नहाने का, ये गुसल खाने का, ये बैतुल खुला, ये क्या क्या हम रूम दिखाते हैं ये मेरे रहने का घर है। इसी तरह मरने वाला आपको भी घर दिखाता है कि देखो ये मेरा घर मेरा बेटा ने बनाया है, एक मोमबत्ती भी नहीं दिया है रोशनी के लिए, और मैंने दुनिया में इसके लिए बेहतरीन लाइट लगाया था। एक हदीस याद आ गई, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि लोगों अगर तुम ये चाहते हो कि तेरा घर आखिरत वाला घर रोशन हो जाए, यानी कब्र तेरा रोशन हो जाए, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कलामुल्लाह की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस तिलावत की बरकत से कब्र में उसको रोशनी का फरमा देगा। अरे दुनिया को रोशन करने, दुनिया वाला घर को रोशन करने के लिए आप बेहतरीन लाइट का इंतजाम करते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, कितने वाट का बल्ब लगाते हैं, लेकिन आपने आखिरत के घर को रोशन करने के लिए कौन से लाइट का इंतजाम किया है आपने? अगर नहीं किया, अगर कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो मेरे दोस्तों कलामुल्लाह की तिलावत करने की आदत डालिए। ये कलामुल्लाह की तिलावत आपको कब्र में रोशनी का काम देगा। और दुनिया में जो टाइल्स लगाए हैं, क्या आपने कब्र में टाइल्स लगाया है? लगाए हैं कोई टाइल्स कब्र में? संगमरमर कोई नहीं लगाए। अगर लगा लिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगाए हैं तो मेरे आका ने भी क्या इरशाद फरमाया है, प्यारी हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मन तसद्दका बिसद्दक़ि अन यमीनिहा वला यखफा शिमालिहा, कि जो शख्स अल्लाह की राह में सदका इस तरह करता है, अल्लाह की राह में इस तरह अदा करता है कि दाएं हाथ से देता है और बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, तो मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नती बिस्तर, जन्नती फर्श, जन्नती टाइल्स कब्र में लगा देता है। अरे हमारे यहाँ टाइल्स किसका बनता है? हम तो मुर्गी में गुजरात में जाके देखते हैं ना कि टाइल्स मिट्टी ही का तो बनता है, लेकिन जन्नती टाइल्स करवाने के नाम बैठे हैं। जन्नती टाइल्स जो है ना वो ये पत्थर सा नहीं, वो सोने चांदी हीरे जवाहरात के होंगे। तो जो टाइल्स हमारा हमेशा काम आएगा, जहाँ यहाँ 70 साल या 80 साल के हम कितने परेशान रहते हैं, इसमें कितने इंतजाम करते हैं, लेकिन जो हमारा आखिरी घर है उस आखिरी घर के लिए कोई इंतजाम नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों आप सबका अल्लाह के राह में ऐसे करो कि दाएं हाथ में हो तो बाएं हाथ पता न चले, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में उसको के कब्र में उसको जन्नती फर्श बना देगा। बड़े दो दफा तो मरने वाला हमको अपना घर दिखाता है कि देखो मेरे बेटे ने रोशनी का इंतजाम नहीं किया, एक बिस्तर नहीं किया, दुनिया में मैंने इसको बेहतरीन फलन दिया था, बेहतरीन गंदा दिया था, बेहतरीन सुबह से दिया था। आज मेरा बेटा इसे लेके जा रहा है और बड़ी जबान से मरने वाला हमें ये पैगाम दे रहा है कि लोगों किस तरह आज मेरे बेटे ने ये मेरा घर बनाया है, कल तेरा बेटा तेरे लिए ही ऐसे ही घर बनाएगा। अपने इस घर को याद करो, अगर तुम मुसलमानों उस घर को याद करोगे तो कभी शराब के बोतल को अपनी हाथ में नहीं लोगे। मुसलमानों अगर तुम उस घर को याद कर लोगे तो तारीख के गिलास को हाथ में नहीं लोगे। अगर उस घर को तुम याद कर लोगे तो जब आसान होगी तो तुम मस्जिद में नजर आओगे। अगर उस घर को तुम याद करोगे तो किसी के हुक्म को पामान नहीं करोगे। आज हम घर को याद नहीं करते, इसलिए आज हमें परेशानियां हो रही है। और जब तुम उस घर को याद कर लोगे, आखिरत को याद कर लोगे, तमाम परेशानी से महफूज मामूल हो जाओगे। और कब्र की जमीन, ये जमीन हमें रोजाना क्या करती है? हदीस के पास ये दुनिया, ये दिन भी हमें क्या करते हैं? मा मिन यौमिन मिन अय्यामिद दुनिया इल्ला यक़ूलु बिलिसानिही, यानी हर एक दिन हमें ऐलान करता है कि हे आदम के बेटे, या इब्न आदम इन्नी आमिलु मा तामलु शहीद,
اے آدم کے بیٹے تم میرے اوپر جو بھی حرکتیں کرتے ہو میں ہر ایک کی گواہ بن جاتا ہوں. تم جو بھی کر رہے ہو, کسی کو ستا رہے ہو, کسی پہ ظلم کر رہے ہو, میں ہر ایک کا گواہ بن جاتا ہوں. اور زمین تجھے ہر روز صبح صبح اٹھ یہی کہتی ہے کہ میرے اوپر پیشاب کرتا ہے, کر میرے اوپر تو پاخانہ کرتا ہے, کر تو میرے اوپر لوگوں کو ستاتا ہے, ستا میرے اوپر تو لوگوں کا حق ختم کرتا ہے, حق ختم کر. تو لوگ میرے اوپر سود کھاتا ہے, کھا میرے اوپر تو سیاستیاں کرتا ہے, کرو. لیکن یاد رکھ جب تیرے خاندان کے لوگ میرے پاس تجھے چھوڑ کے جائے گا, یاد کرو جب تیرے رشتہ دار میرے پاس تجھے چھوڑ کے جائے گا, تیرا اپنا ہی بیٹا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری میرے لیے تجھے چھوڑ کے جائے گا. یہ تو دعا میں پڑھا, پتہ نہیں تیرا بیٹا دعا پڑھ پائے گا یا نہیں پڑھ پائے گا. تیرا بیٹا مولانا نہیں, مولانا عبد المنان صاحب کو کہے گا مولانا صاحب دعا پڑھتے رہیے نا. افسوس کی بات یہ ہے مولانا صاحب دعا پڑھتے رہے گا, مولانا صاحب پڑھتے رہیے. ارے کتنا مرتبہ مٹی دے گا بھائی, 3 ہی مرتبہ مٹی دینا ہے نا, 3 مٹی دینا ہے. مولانا صاحب کو دعا پڑھتے اتنا شہید ہے, اتنا فقیر ہے, اتنے عقلمند ہیں کہ ایک پڑھتے رہنا تو آپ کو یاد ہو جائے گا. جس دعا کو آپ کو یہاں یاد کرنا تھا, جس دعا کو آپ کو یہاں یاد کرنا تھا, اس کو یاد نہیں کیے. مولانا کو کہتے ہیں کہ پڑھتے رہیے. تو ہاں تیرا بیٹا جب میرے پاس چھوڑ کے جائے گا تو میں تمہیں ایسے دباؤں گی کہ دائیں پھر تیری بائیں چلی جائے گی, بائیں پھر تیری دائیں چلی جائے گی. تو چیختا رہے گا, چلاتا رہے گا, تو تیرا پھر پرسان حال نہیں رہے گا. ہاں تو میرے اوپر پیشاب کرتا ہے کرو, میرے اوپر پیخانہ کرتا ہے کرو. لیکن اگر اپنے چہرے پہ سنت رسول کو بنائے ہوئے ہو, تو اگر سیرت مصطفیٰ کو بنائے ہوئے ہو, آقا نے خدا بندی کو عمل کر کے رکھے ہو, تو جب تم میرے پاس آئے گا تیرا بیٹا میرے پاس چھوڑ کے جائے گا, تیرے خاندان کے لوگ میرے پاس چھوڑ کے جائیں گے, تیرے رشتہ دار میرے پاس چھوڑ کے جائیں گے, تو میں تجھے اپنی گود میں ایسے اٹھا لوں گی کہ تیرے پچھلی بھی ماں اپنے بیٹا دیتی ہے. تو اپنے کو احکام خدا بندی سے الگ نہ کر. اور یہ بات میں جیتا رہی ہے, یہ بات قرآن اللہ میں بھی اعلان کیا جاتا ہے یوم الدین تحدث اخبارها بأن ربك اوحاها, کہ زمین اس دن آپ کی ہر بات بتائے گی. آپ تو چپکے سے کسی سے رشوت لے لیتے ہیں, چپکے سے کسی سے سود کھا لیتے ہیں, چپکے سے کسی کو گالی دے دیتے ہیں, آپ سوچتے کہ کوئی نہیں دیکھا. میرے دوستو ہمیں کتنا, ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن ہم کو کتنا اپنی ایمان کی یقین نہیں ہے. صحابہ کرام کی کردار کو دیکھیے, بڑے مرتبہ درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صل علی